પલ્સમાં આપ સર્વે દર્શકોનો ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું મિત્તલ પટેલ. વક્રતુંડે મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુર્વે દેવા સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા. આપણે આપણા જીવનમાં કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરતા હોય તેના પહેલાં ગણપતિ બાપાને યાદ કરીએ છીએ. ગણપતિ બાપાની પૂજા કર્યા બાદ આપણા જીવનમાં શુભ કાર્યોની શરૂઆત કરીએ છીએ. સમગ્ર ભારત વર્ષમાં ગણપતિ બાપાનો ઉત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવાય છે. આજે નિર્માણ પલ્સમાં વાત કરવાની છે ગણપતિ બાપાની માટીની મૂર્તિના નિર્માણની. તો ચાલો મારી સાથે. ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ બાપાની મૂર્તિ અહીંયા બની રહી છે અને કેવી રીતે ફરવામાં તૈયાર થાય છે આપ જોઈ રહ્યા છો. કારીગર ભાઈઓ કલકત્તાથી આવેલા છે, અમુક કારીગર ભાઈઓ બંગાળથી આવેલા છે અને એક ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે. એક આખો તેનો ફર્મો હોય છે અને માટીને 2-3 દિવસ પલળતા લાગે છે સમય. ત્યારબાદ એ માટીને મિક્સ કરવામાં આવે છે અને એક ફરમાની અંદર એ માટીને ધીરે ધીરે પૂરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ મૂર્તિ તૈયાર થતી હોય છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કારીગર ભાઈ જે માટી અંદર પૂરી રહ્યા છે ફરમાની અંદર, એ ખૂબ ચોળીને હાથેથી મસળીને એક સરસ ઓપ આપીને પૂરી રહ્યા છે અને દિવસમાં 8 થી 9 મૂર્તિઓ તેઓ આવી રીતે તૈયાર કરે છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે ભાઈ માટીની મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે, ફરમાની અંદર મૂકી રહ્યા છે અને એને ખૂબ પ્રેસ કરીને એક સરસ ઘાટ આપવામાં આવે છે. ફરમાની અંદર પણ માટીને જ્યારે પૂરતા હોય તો એનો એક ઘાટ પણ તૈયાર કરવો પડતો હોય છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે ફરમાની અંદર ખૂબ સરસ રીતે કારીગર ભાઈએ માટી પૂરી છે અને એક ફરમો તૈયાર કર્યો અને ફરમાની અંદરથી ગણપતિ બાપાની મૂર્તિ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ધીરે ધીરે તેને એક સરસ ઓપ આપતા આપતા એ ફરમો ખોલવામાં આવી રહ્યો છે. ફરમો ખોલતી વખતે પણ ખૂબ તકેદારી રાખવી પડે છે કે માટી ક્યાંય ચોંટી ન જાય ફરમાની અંદર. તો ગણપતિ બાપાની મૂર્તિ ખૂબ સરસ રીતે ફરમાની અંદર તૈયાર થઈ રહી છે. માટીને ખૂબ ચોળીને પૂરવામાં આવે છે અને આ ફરમો ખૂબ સરસ પૂર્યા બાદ માટીની મૂર્તિ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે ગણપતિ બાપાની ખૂબ સુંદર માટીની મૂર્તિ, ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ તૈયાર થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ તેને ફિનિશિંગ પણ આપવામાં આવે છે. ખૂબ ઝીણવટભરી કારીગરી છે આ મૂર્તિ બનાવવામાં અને આ ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ છે, માટીની મૂર્તિ છે તો ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે કે ક્યાંય માટી ખસી ન જાય અને મૂર્તિ ડેમેજ ન થાય. દિવસમાં 8 થી 10 મૂર્તિઓ આ ભાઈ તૈયાર કરે છે. નિર્માણ પલ્સમાં આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છે મૂર્તિકારની
કે તેમનું જીવન કેટલું સંઘર્ષભર્યું છે અને આ કોરોનાની મહામારી વચ્ચે પણ તેઓએ શરૂઆત કરી છે મૂર્તિ બનાવવાની અને મૂર્તિકાર મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે. એક ફરમાની અંદર મૂર્તિને બનાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. क्या नाम है भैया आपका? अशेश्वर। अश्वेश्वर. अच्छा, कहाँ से हो आप? हमें तो आगरा से है ये। आगरा से. अच्छा, कितने दिन लगते हैं एक मूर्ति बनाने में? एक मूर्ति 2-3 घंटे खा जाती है बनाने में। हाँ, एक दिन में 4-5 मूर्ति बनाई है और 4-5 ये सफाई करके है ना कंप्लीट करी रखी है। 10-11 मूर्ति थी जा बेजना देते। और यहाँ कितने दिन रहते हो आप? यहाँ हमें 12 महीने रहते हैं। ये साल में दिवाली पे घर जाता हूँ बस। दिवाली में घर? अब पूरा साल क्या करते हो? ये मूर्ति बनाते हो? पूरी साल मूर्ति बनाता हूँ। ये कोरोना की महामारी है तो इस साल आप कितनी मूर्ति बनाने वाले हो और क्या है आपके जीवन में कोरोना आया है तो? अभी तो ये साल तो ऐसा है कि अभी जो चल रहा है तो अच्छा चल रहा है कि अभी तो काम तो बंद पड़ा था। अब 1 महीना से अभी काम चालू किया है। अब जितना हो सकेगा उतना बनाएंगे, अगली साल से देखा जाएगा। ये आपने मूर्ति बना रहे हो तो मिट्टी भिगोने में कितने दिन लगते हैं? ये मिट्टी भिगोने में तो अभी एक दिन लग जाता है पूरा। फिर उसको तैयार करके ना फिर थोड़ा कर लेके बनाते हैं। फिर उसके बाद है ना फरमा बना के फिर उसको मूर्ति तैयार करते हैं। तो फर्मे में जब डालते हो आप तो उसको कैसे डालना पड़ता है आप दिखा रहे हो और कितना प्रेस करना पड़ता है? वो तो आप देख ही रहे हैं कि जो जितना टाइम लगता है बनाने में, एक घंटा लग जाता है दो मूर्ति को बनाने में। फिर सफाई करने में ज़्यादा टाइम खाता है। फिनिशिंग भी दे रहे हो अभी? अभी फिनिशिंग नहीं, फिनिशिंग तो अभी बाकी है। खाली मूर्ति फरमा से निकाल के बाहर रखते हैं। ये मिट्टी की मूर्ति है तो इसमें कितना ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है तो? मिट्टी में तो ज़्यादा वो ध्यान रखना पड़ता है कि जो ज़्यादा, क्योंकि वो कच्चा माल होता है और इसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मतलब। और जो टूट जाती है तो दोबारा फिर पानी में डाल देते हैं, ये तो पिघल जाती है मिट्टी। तो કલાકાર ભાઈ છે અને મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે. એક ફરમાની અંદર મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે, માટીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે. માટીને 2-3 દિવસ લાગી જાય છે પલળતા, ત્યારબાદ તેને ભેગી કરીને મસળ્યા બાદ ફરમાની અંદર મૂકવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એને ફિનિશિંગ આપીને સૂકવવામાં આવે છે અને 2 દિવસ બાદ એને ફરીથી ફિનિશિંગ આપીને કલર કામ કરવામાં આવે છે. તો कितने दिन लग जाते हैं एक मूर्ति बनाने में? एक मूर्ति में 1 दिन लग जाता है और 2 दिन 3 दिन सुखाने में लगते हैं और उसके बाद में है ना सफाई करके कलर में लेते हैं। 3 दिन मतलब खा जाते हैं तैयार होने में। अच्छा, जब ये फरमा में डालते हो तो कितने घंटे लगते हैं इस फरमा में डालने के लिए? इस फरमा के लिए तो डालने के लिए तो मतलब 2 दिन एक घंटे के अंदर तैयार हो जाती बन के। बाद में सिकने के बाद तैयार होती है? हाँ, फिर उसके बाद में तैयार होती है। मेहनत कितनी लगती है इसमें सुखोने में, फिनिशिंग देने में, कलर करने में? इसमें मेहनत तो कलर में फिनिशिंग में ज़्यादा लगती है। कलर में इतना टाइम नहीं खाता है और मतलब जो बना के है ना फिनिशिंग में लाते हैं ना उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। अच्छा। हाँ, और जो अपने कलर तो फटाफट हो जाता है, मतलब सुखाने में टाइम ज़्यादा फिनिशिंग में लगता है। 2-1 दिन खा जाते हैं, मतलब एक तो करते नहीं, हम लोग इकट्ठा बना के कलर काम में लेते हैं। अच्छा, तो इनकम कितनी होती है? ये कोरोना महामारी है, इनकम कितनी होती है? एक मूर्ति के पीछे कितना मिलता है आपको? एक मूर्ति में क्या जो ऐसा है कि मिट्टी का अभी है तो 100-150 रुपया मिल जाता है एक मूर्ति में। बनाई जाए इसमें जल्दी ज़्यादा बना भी नहीं सकते। आप जब ये इतना मेहनत करते हो तो उसके हिसाब से पैसे मिल जाते हैं? उसके हिसाब से पैसे निकल आते हैं, मेहनत के हिसाब से पैसा निकल जाता है, लेकिन उतना बच नहीं पाता है। બીબાની અંદર માટી પ્રેસ કરીને પૂર્યા બાદ એક સરસ મૂર્તિ તૈયાર થાય છે અને એ મૂર્તિ બીબા પ્રમાણેની હોય છે એટલે તેનો ઘાટ બીબા પ્રમાણેનો હોય છે. ખૂબ પ્રેસ કર્યા બાદ બીબાની અંદરથી મૂર્તિ તૈયાર થયા બાદ તેને
ફિનિશિંગ કરવામાં આવે છે અને અહીંયાથી મૂર્તિ તૈયાર થયા બાદ ડાયરેક્ટ એ મૂર્તિ ફિનિશિંગમાં અહીંયા આવે છે અને ખૂબ સરસ મજાની આ મૂર્તિ તૈયાર થઈ રહી છે અને ફિનિશિંગ તેને ખૂબ સરસ રીતે કરવામાં આવે છે गणपति बापा ने। क्या नाम है भैया आपका? विकास भाई। और कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हो। और मूर्ति तैयार होने के बाद बीबे से निकल के आप यहाँ पे फिनिशिंग देते हो, तो फिनिशिंग में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है और कैसे देते हो फिनिशिंग? फिनिशिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जो बीओपी में से इसमें से निकलता है मूर्ति, उसमें बहुत सी चीज़ों की जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाती है। उसे सबको पहले क्लियर करके उसे फिर कट करके उसे फिनिशिंग देने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जितना ज़्यादा बेस्ट फिनिशिंग होगा उतना ज़्यादा पीस अच्छा दिखाई देता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा समय लगता है। और हर चीज़ को अपने तरीके से करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा जाता है। मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है, उसे गीले में ही काम करना है। अगर सूख जाता है तो फिर इसका क्या है, टूटने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो उसे ध्यान में रखकर उसे जितना हो उतना जल्दी, फिर भी 1-2 घंटे लगते हैं एक पीस को कंप्लीट करने में। તો મિત્રો ખૂબ સરસ મજાનું અહીંયા ફિનિશિંગ આપવામાં આવી રહ્યું છે અને એક પેન્સિલ જેવા આકાર જાતે ખુદ બનાવેલો છે ભાઈએ અને એને સરસ રીતે ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે અને भैया आप बोल रहे थे ये जब फिनिशिंग हो जाने के बाद उसको कितने घंटे या कितने दिन धूप में रखने पड़ता है? इसको शुरू में हम धूप में नहीं रख सकते क्योंकि पहले हम इसे गीला करते हैं और गीली चीज़ माटी है, ये धूप में डायरेक्ट जाएगी तो ये फट जाएगी। इसको पहले ठंडी आँच धूप में या छाँव में इसको थोड़ा सुखाना पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने के बाद में इसे हम नेक्स्ट डे दूसरे दिन ही धूप में रख सकते हैं, जिससे कि इसका प्रोसेस सूखने का शुरू होगा। इससे पहले अब इसे सुखा नहीं सकते। उससे पहले अगर सूखने रखते हैं तो ये क्या है, इसमें तिरार पड़ जाएगा, टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और धूप में कितने दिन रखते हो आप? 2 दिन जैसा रखना पड़ता है, जिससे अंदर तक सूखना चाहिए क्योंकि बाहर से तो इसको हवा मिलती है, अंदर हवा नहीं मिलती, इसके लिए ज़्यादा समय लगता है सूखने में। तो इस साल आपने थोड़ा लेट काम शुरू किया है और जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है, वो भी थोड़ा गीला है, बारिश का भी मौसम है, तो मूर्ति सूख जाती है, क्या डैमेज होती है? डैमेज भी होती है, सूख भी जाती है और रिपेयरिंग भी करना पड़ता है। फिर हेलोजन लगा के भी जला के नाइट में हेलोजन लगा के चालू कर देते हैं, जिससे थोड़ा एटमॉस्फेयर जो गर्माश मिलेगी तो थोड़ा जल्दी सूखे, क्योंकि बाहर वेदर इतना क्लियर नहीं है जो कि बाहर से सुखाया जा सके। इसलिए कुछ वेदर से और कुछ हमारा जो हेलोजन लगा के उससे सुखाना पड़ता है इसको। તો મિત્રો ખૂબ સંઘર્ષભર્યું કામ છે ભાઈઓનું કે બીબાની અંદર મૂર્તિને ખૂબ પ્રેસ કર્યા બાદ એક મૂર્તિ તૈયાર થતી હોય છે, ત્યારબાદ તેને ફિનિશિંગ આપવામાં આવે છે। ફિનિશિંગ ખૂબ સરસ રીતે આપવામાં આવે છે, બારીકાઈથી આપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તેને 1 દિવસ રાખવામાં આવે છે છાંયડાની અંદર। ત્યારબાદ ફિનિશિંગ આપ્યા બાદ થોડી સુકાય બાદ તડકે મૂકવામાં આવે છે। થોડીક ભેજવાળા વાતાવરણમાં બી તકલીફ થતી હોય છે, રાત્રે પણ હેલોજન લગાવીને મૂર્તિને થોડી સરખી રીતે ઓપ આપવામાં આવે છે, ગરમી આપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ મૂર્તિ તૈયાર થતી હોય છે, ત્યારબાદ તેને કલર કામ પણ કરવામાં આવે છે। ભાઈ ખૂબ સરસ મજાની મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે, શેપ આપી રહ્યા છે। અને भैया आप कितने साल से ये काम करते हो? मुझे 3 से 4 साल हो चुका है इसमें। 3 से 4 साल बना रहे हो। आपने ट्रेनिंग ली हुई है मूर्ति बनाने की? नहीं, मुझे ये पसंद था और मैं देखता रहता था। पहले भी मैं जब छोटा था तब भी मैंने बहुत से लोगों को काम करते हुए देखा। उन लोगों को देखकर मेरी भी इच्छा हुई करने की, और उसके बाद में मैं उन्हीं लोगों के साथ में देखता रहता था और थोड़ा बहुत करता रहता था। उसके बाद से मैंने करना शुरू कर दिया। और आप कितने पढ़े लिखे हो भैया? BA कंप्लीट है। कौन से सब्जेक्ट में आपने BA पास की? साइकोलॉजी से किया हुआ है। क्या बात है, साइकोलॉजी में BA कंप्लीट किया है और आपकी ये हॉबी है? मुझे ये पसंद है काम करना, इसके लिए मैं मूर्ति का काम करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम करते हो भैया आप। तो સાયકોલોજીમાં BA કરેલું છે અને ભાઈને મૂર્તિ બનાવવાનો ખૂબ જ શોખ છે અને ખૂબ સરસ શેપ આપી રહ્યા છે મૂર્તિને, કટિંગ પણ ખૂબ સરસ કરી રહ્યા છે। બીજા પણ આગળ ગણપતિના મૂર્તિકાર છે, ગણપતિની મૂર્તિ ખૂબ સુંદર રીતે બનાવી રહ્યા છે। માટીની મૂર્તિની આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ બાપાની વાત કરી રહ્યા છે મૂર્તિની।
અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી ગુજરાતમાં કારીગરો આવે છે અને માટીની મૂર્તિ અહીંયા બનાવે છે. તેમની પાસેથી જ જાણીએ કે કેટલો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે અને માટીની મૂર્તિ બનાવતા કેટલો સમય લાગે છે. ક્યાં નામ है आपका? शहादत विश्वास. सागर. शहादत विश्वास. शहादत. और आप कहाँ से आए हो? कोलकाता से. कलकत्ता से आए हो और फैमिली के साथ आए हो या अकेले? अकेला आया हूँ. अकेले आए हो. और कितने पढ़े लिखे हो आप? 8 तक पढ़ लिखा है मैंने. और यहाँ पे आप काम करने के लिए आए हो. हाँ. कितने मंथ से यहाँ पे हो? 1-1.5 महीना हो गया आया इधर. 1.5 महीने से आप यहाँ पे हो. फैमिली के साथ आए हो या फैमिली के बगैर आए हो? अकेला आया हूँ इधर. अकेले आए हो. और कितनी आमदनी आपको मिलती है? इस साल तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा जो भी मिलेगा. 2 महीने में आया हूँ, 2 महीने के लिए आया हूँ काम करने के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये मिलेंगे. और घर पे कितना भिजवाना पड़ता है आपको? घर पे तो सभी भेजना पड़ता है. मेरे का जो हाथ खर्चा है इसलिए रख के सब भेजना पड़ेगा. तो મિત્રો આ કારીગર છે અને સંઘર્ષ કર્યું તેમનું આ કામ છે. गुजरात कब आते हो? ये गणपति का उत्सव होता है तब आते हो मूर्ति बनाने के लिए? हाँ, हर साल तो 4 महीने के लिए आता हूँ, इस साल 2 महीने के लिए आया हूँ. कोरोना है इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो गया है, रोजी के प्रॉब्लम हो गई. हाँ हाँ. यहाँ पे ही रहते हो और हाँ, यहाँ पे रहता हूँ. यहाँ पे खाना पीना होता है, यहाँ पे रहता हूँ. खाना आप भी बनाते हो? हाँ. તો મિત્રો આ કારીગર છે કલકત્તાથી આવ્યા છે, પોતાના પરિવારજનો સાથે નથી રહ્યો તેઓ રહેતા અને અહીંયા જે પણ કમાણી થાય છે પોતાના પરિવારજનોને તેઓએ મોકલાવવી પડતી હોય છે. કોરોનાની મહામારી છે, 4 મહિનાનું આ વર્ક છે, છતાં તેમને 2 મહિના કામ કરવાનું આ વખતે મળ્યું છે અને 2 મહિનામાં તેમને કહી રહ્યા છે કે આમદની ખૂબ ઓછી થઈ રહી છે, પણ એ પણ એક રોજગારી અર્થે તેમને માર પડી રહ્યો છે. કેટલી મૂર્તિ આપ બના લેતે હો? एक दिन में तो एक मूर्ति नहीं होता है, एक मूर्ति कम से कम 1 हफ्ता लगता है. सब हाथ को करना पड़े तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है. તો મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો કે એક મૂર્તિ બનાવતા તેમને ઘણો સમય લાગે છે અને એક મૂર્તિ એક સરખી નથી હોતી. તેનું રો મટીરિયલ ઉમેરીને તેને એક અલગ અલગ ડિઝાઇન આપીને બનાવવામાં આવે છે. આપ જોઈ રહ્યા છો મૂર્તિઓ કેટલી સુંદર બનાવવામાં આવી રહી છે. एक मूर्ति बनाने के पीछे आपको कई घंटे लगते हैं. अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे बनाई हुई है. तो डिज़ाइन कौन डिसाइड करता है, आप करते हो या कोई और? और कस्टमर लेके आता है फोटो, उसको देखे बनाते हैं हम लोग. कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मूर्ति बनाते हैं? हाँ, डिमांड से हिसाब बनता है. ये मिट्टी की मूर्ति है तो उसको कितना बनाने में दिक्कत होती है? दिक्कत ये बारिश होता है तो नहीं सूखता है, इसीलिए दिक्कत होता है. धूप होता है तो अच्छा होता है, जल्दी से जल्दी सूख जाता है. इसलिए इस साल तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस साल बारिश कम है, इसीलिए सब सही है. તો મૂર્તિ બનાવવા માટે ઘણો સમય લાગે છે અને ભાઈ કહી રહ્યા છે કે કસ્ટમર જ્યારે આવે ત્યારે ફોટો લઈને આવતા હોય છે અને એ પ્રમાણે તેઓ મૂર્તિને ખૂબ સરસ ઓપ આપીને બનાવવામાં આવે છે કે ખૂબ ઉમદા કલાકાર કહેવાય કે આવી સરસ મૂર્તિઓ તેઓ બનાવી રહ્યા છે. એક મૂર્તિ એક સરખી અહીંયા તમે જોઈ રહ્યો છો નથી, અલગ અલગ મૂર્તિઓને ખૂબ સુંદર રીતે અહીંયા ડિઝાઇન આપીને બનાવવામાં આવી રહી છે અને એ પણ માટીની મૂર્તિઓ છે. આપણે જોયું કે કાચી માટીમાંથી કેવી રીતે સરસ મૂર્તિ તૈયાર થાય છે, એક બીબા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવેલા જે કારીગરો છે એ મૂર્તિઓને ખૂબ સરસ રીતે બનાવે છે. ત્યારબાદ આ મૂર્તિઓને રંગરોગાન કરીને ગ્રાહક પાસે સીધી લાવવામાં આવે છે. ગ્રાહકની ડિમાન્ડ પ્રમાણે મૂર્તિઓને શણગારવામાં પણ આવે છે, તેને આભૂષિત કરવામાં આવે છે. તો ખૂબ સુંદર મજાની આ મૂર્તિઓ તૈયાર થઈ રહી છે, આપ જોઈ રહ્યા છો. તો આવી જ મૂર્તિઓ, ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિઓ આ વખતે તમારા ઘરે બાપાને બિરાજમાન કરો અને પર્યાવરણનું જતન કરો. તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો કે ગણપતિ બાપાની માટીની મૂર્તિઓ અલગ અલગ ડિઝાઇન આપીને બનાવવામાં આવી છે. અલગ અલગ સિંહાસન પર ગણપતિ બાપા બિરાજમાન છે. કારીગર ભાઈ છે, શું નામ છે आपका? क्या नाम है आपका? पोषण पाल. अच्छा, कहाँ से हो आप? कोलकाता का है. कलकत्ता से आए हो और कितने साल से अहमदाबाद में आते हो ऐसे? अभी 9 साल हो गया अहमदाबाद में. और कितने मंथ से यहाँ पे रह रहे हो? यहाँ पे 2 महीना तो ऐसे हो गया, 2 महीना से चालू है काम. 2 महीना से काम चालू है. तो ये 2 महीने में कितनी आमदनी होगी आपको? ऐसा लॉकडाउन के हिसाब से थोड़ा कम हुआ,
जैसे 100 मूर्ति बनाता था, 100 मूर्ति तो नहीं बन पाया, आधा मूर्ति 50 मूर्ति तक बनाया। इसलिए लॉकडाउन से माल सामान भी नहीं मिला, कारीगर भी नहीं मिला, हम लोग जो खुद ऐसे ही बनाया। आपको कहाँ से सीखा आपने ऐसे बनाना? तो कोलकाता में ही सीखा। मैं बचपन से मैं पढ़ाई करता था और इस काम में ध्यान था मेरा। मेरे घर में भी एक काम भी था। मैं 8 तक पढ़ाई किया, उसके बाद से काम में चालू कर दिया मूर्ति का काम। अभी 14 साल तक ये मूर्ति का काम कर रहे हैं हम। 2 महीने यहाँ पे आते हो, पहले 4 महीने यहाँ पे रहते पहले थे। जो लॉकडाउन से पहले 4 महीना काम चालू था, अभी तो लॉकडाउन के हिसाब से अभी 2 महीने यहाँ पे ही चल रहा है काम। तो परिवार को कितना भेजना पड़ता है आमदनी? को पैसा तो भेजना पड़ता है, महीना में पैसा भेजना पड़ता है। अभी 2 महीना भी पैसा मैं जरूरी नहीं, अभी घर जाके फिर 2 महीना बाद घर चला जाऊंगा। फिर खाना भी आप यहाँ पे ही बनाते हो? खाना यहाँ पे ही बनाता हूँ, खुद का खाना। हाँ, रहना भी यहाँ पे, खाना भी यहाँ पे ही, सब कुछ। ये बारिश का भी मौसम है, धूप भी बाहर है, गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो कैसे बना लेते हो ये सब? तो बना, हम लोग को आदत पड़ गया, छोटा से काम में चालू था, आदत पड़ गया तो बनाना ही पड़ता है। और ये मटेरियल है, रो मटेरियल है, तो ये गणपति बाबा के आप जब मूर्ति बनाते हो तो पहले ये घास से शुरू होता है, पहले घास से उसको बनाना पड़ता है, उसको बाद इसको ऊपर मिट्टी लगा के कम करता है हम लोग। ये आप ही बनाते हो? हाँ, हम बनाते हैं। ये कितने दिन में बनता है? ये तो दिन में 8-10 बन जाएगा। ये 8-10 बना दूंगा, फिर सुबह से लगूंगा, 8-10 बना दूंगा। और कई मूर्ति यहाँ पे है, लेकिन अलग अलग डिजाइन की मूर्ति है, तो कस्टमर आके बोलते हैं या आप अपने हिसाब से ही डिजाइन पसंद करते हो? देखो, मेरा मन की जो डिजाइन है मैं पहले से बना देता है। जो कस्टमर जो लेके आता है वो भी हम लोग कोशिश करते हैं बना देता हूँ। जो कस्टमर फोटो हिसाब से लेके आता है, जो मेरे को ये डिजाइन बना दो, इस हिसाब की मूर्ति बना दो, हम लोग भी कोशिश करके बना देता है। ये मिट्टी की मूर्ति है, तो उसको गिरने में कितनी दिक्कत होती है, बनाने में कितनी दिक्कत होती है? बनाने में दिक्कत होता है, इसमें क्या है, टाइम का काम है। ये जल्दीबाजी का काम नहीं है, धीरे 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 एक मूर्ति बनाने में 1 हफ्ता तक लग जाता है। धीरे धीरे बन जाता है। ये कोरोना है, महामारी है, और परिवार की कितनी चिंता लगी रहती है? चिंता तो लगेगा ही ना, कि बाहर पर इधर है तो चिंता थोड़ा बहुत उधर भी लगेगा। हम लोग को भी चिंता लगता है। परिवार में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा तो नहीं है, भाई है, भाभी है, मेरा घर वाला है, सब है। बच्चे भी है आपके, तो चिंता लगी रहती है। और यहाँ पे हो आप, तो कितनी आप फिक्र करते हो अपने आप की भी, कितनी केयर करते हो कोरोना में? कोरोना में फिक्र करना ही पड़ता है ना, जो चल रहा है इसी हिसाब से हम लोग को भी सेफ्टी में रहना पड़ता है। कितनी सेफ्टी आप रखते हो और क्या क्या करते हो? मैं तो देखो, हम लोग जस्ट हाथ पाथ धो के सब कुछ करता है, सैनिटाइज करता है, सोने का टाइम पहले सब कुछ सफाई होके हम लोग सोता है। कोई आता है तो मास्क वास्क लगा के बात करता है। कोई बाहर से आया तो हम लोग थोड़ा दूर ही रहता है। कस्टमर आए तो दूर से ही समझा। मास्क लगा के भी सैनिटाइज करता है, सब कुछ सेफ्टी में ही रहता है हम लोग। और ये मूर्ति आप बनाने में कितने दिन लगते हैं? अलग अलग डिजाइन की है? अलग अलग डिजाइन में लगता है 1 हफ्ता। तो एक मूर्ति डिजाइन वाला कोई होगा तो 1 हफ्ता लग जाएगा कंप्लीट तक पूरा। मेहनत के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है? पेमेंट तो मिलते हर साल ही पेमेंट तो मिलता है। ऐसा लॉकडाउन से हिसाब थोड़ा 100 टका कम हो गया, 100 टका में 50 टका चला आया। हर साल जो जैसे सबसे कमाई होता था, इस साल कमाई नहीं है, इस साल थोड़ा मार पड़ गया। थोड़ा कम हो गया। इस हिसाब से हम लोग को चलता है। તો મિત્રો આવી જ રીતે કારીગરો અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવે છે અને તેઓ કહી રહ્યા છે કે અમે જીવન આ પરિસ્થિતિ છે, કોરોનાની આ મહામારી છે, તો આ પરિસ્થિતિમાં અમને ખૂબ માર પડી રહ્યો છે, ખૂબ મહેનત તેઓ કરી રહ્યા છે। અહીંયા બફારો પણ થઈ રહ્યો છે, બહાર થોડો ઘણો વરસાદ પણ છે અને ક્યાંક તડકો પણ વધી રહ્યો છે। આ બધી પરિસ્થિતિમાં તેઓ એક જ જગ્યા પર રહે છે, માટીની મૂર્તિઓ બનાવે છે, જાતે જમવાનું બનાવે છે અને અહીંયા જ રહે છે અને અહીંયા જ સમય પસાર કરીને અહીંયા જ માટીની મૂર્તિ બનાવે છે। કારીગરો મારા કલકત્તાથી લગભગ 10 જણ આવતા હતા, એને કારણે અત્યારે ખાલી કોરોના હિસાબે 3 થી 4 કારીગર આવ્યા છે ને પ્રોડક્શન બી એટલું બધું નથી, દર વખતે કરતાં બહુ ઓછું છે। દર વર્ષે કેટલી મૂર્તિ હોય છે સંખ્યામાં? મારી સંખ્યામાં લગભગ 150 થી 200 પીસ હોય છે। આ વખતે 60 થી 70 નંગની અંદર થયું છે ને એની અંદર બી લગભગ 15 થી 12 પીસ જ હજી સુધી બુકિંગ થયા છે ને ગણપતિના દિવસ હજુ 15 દાડા બાકી છે, બસ હજુ સુધી કશું એટલું નથી બુકિંગ। ॐ गं
गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। વેપારી પાસેથી જાણીશું કે આ વર્ષે જે કોરોનાની મહામારી છે તે પ્રમાણે મૂર્તિઓ કેવી બનાવવામાં આવી છે, સાથે સાથે કારીગરોની શું હાલત છે, મેકિંગ તો થઈ રહ્યું છે પણ ગ્રાહકો સુધી કેવી રીતે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला जैन है। और इस साल जो कोरोना की ये परिस्थिति है तो ग्राहक जो है वो कैसी डिमांड करते हैं और जो यहाँ पे मेकिंग होता है उसमें क्या नया करने की आपने कोशिश की है? मेकिंग में तो ऐसा है कि मिट्टी का ही इस बार बनाया है, पीओपी बिल्कुल कैंसल ही रखा है और कस्टमरों को भी डिमांड मिट्टी में ही है ताकि वो घर पे जाके विसर्जन अपने घर पे ही कर सके। और हाइट में तो ऐसा है वही जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है 2-2.5 फुट तक की ही वो बनाया है और मिट्टी का ही है। पर हर साल से इस बार बुकिंग भी 50% है और कारीगर भी हमारे पास जो हर साल 10 से 12 कारीगर होते हैं, इस बार 5 कारीगर ही हैं। નિર્માણ પર્સમાં આજે આપણે વાત કરી ગણપતિ બાપાની માટીની મૂર્તિની। કારીગરોની કેટલી મહેનત છે, વેપારીઓની શું હાલત છે, કસ્ટમરો સુધી ગણપતિ બાપાની મૂર્તિ પહોંચતી વખતે કેટલા લોકોની મહેનત જોડાયેલી છે। આવી જ રીતે નિર્માણ પર્સમાં વિવિધ પ્રકારની વાતો હું તમારા સુધી લઈને આવીશ। સાથે સાથે ગણપતિ બાપાને એવી પ્રાર્થના પણ કરીએ કે આવનારું આ નવું વર્ષ આપણા જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લઈને આવે। 2020 કોરોનાની મહામારીનું વર્ષ જલ્દી ખતમ થાય અને આપણે બધા જ હસી ખુશીથી ફરીથી એક સાથે અનેક ઉત્સવો ઉજવતા રહીએ। હવે તમારી હોસ્ટ દોસ્ત મિત્તલને રજા આપો। જય ગણેશ।